تلنگانہ کی ریاستی اسمبلی کے سرمائی سیشن کو طویل مدتی بنانے کے حزب مخالف کے دیرینہ مطالبے پر حکومت کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی نے آج سے شروع کی جانے والے اسمبلی سیشن کو 50 ورکنگ ڈیز تک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسمبلی کی کارروائی کا آج سے آغاز ہوا اور ابتدائی ماحول بڑا ہی گہما گہمی کا شکار بن گیا۔ ویسے ابھی تو شروعات ہوئی ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ریاست تلنگانہ کے حکومتی صلاحکار جناب اے.کے. خان IPS ریٹائرڈ نے شہر میں واقع سرکاری اردو میڈیم اسکولز کی دیرینہ زبوں حالی کے چلتے عوام کی بے شمار شکایتوں کے پیش نظر آج ملے پلی میں واقع گورنمنٹ ہائی اسکول اردو میڈیم کا اچانک دورہ کیا اور کارکردگی کا جائزہ لیا۔ بچوں سے بات چیت کی اور ایک ہونہار طالب علم کی صلاحیتوں پر اسے اپنا ایک پین بھی تحفتاً پیش کیا۔ بعد میں انہوں نے ریڈ ہلز میں واقع گورنمنٹ پرائمری اسکول اردو میڈیم کا بھی اچانک دورہ کرتے ہوئے وہاں کے حالات بھی دیکھے اور استادوں سے بات چیت کی۔ اس دورے میں عوام یہ دیکھ سکتی ہے کہ سرکاری اسکولز کی بوسیدہ عمارتیں یہ بتلا رہی ہیں کہ TRS حکومت اردو دوست اردو سے کیسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ تیلگو ریاستیں تلنگانہ و آندھرا کے ٹاسا مینجمنٹ نے آج ٹوئن سٹیز کے قریب 8 اسکولز کے پرنسپال کی شراکت سے ایک کانفرنس منعقد کی، جس میں شامل ہوئے ڈیفنس کے اسٹیشن کمانڈر، آرٹلری کے کمانڈنٹس، آرمی اور آرڈننس کارپس اور فرسٹ EME کے کئی اعلیٰ عہدیدار بھی۔ اس کانفرنس میں اسکولی طلباء کی نشو و نما کو مزید بہتر بنانے کے لیے کئی مدوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جیسے اسپورٹس و گیمز، لٹریری ورائٹی فیسٹیولز، کوئز اور ڈیبیٹ پروگرامز، اسٹیج پرفارمنس کمپٹیشنز وغیرہ وغیرہ۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم اور حلقہ حیدرآباد کے پارلیمانی ممبر نقیب ملت جناب بیرسٹر الحاج اسد الدین اویسی نے MP فنڈ سے قریب 70 لاکھ کے بجٹ سے بنائے جانے والے پرانے پل کے شہرت یافتہ علاقے پاردی واڑے میں ایک کمیونٹی ہال کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ ساتھ ہی صدر محترم نے 75 لاکھ کے بجٹ سے بہادر پورہ چوراہے سے پرانے پل کے پاردی واڑے تک پانی کی سپلائی کے لیے 3 نئی پائپ لائنز 200 mm، 150 mm اور 100 mm کے کام کو بھی آج ہری جھنڈی دکھائی۔ اس موقع پر حلقہ چارمینار کے مجلسی MLA جناب الحاج احمد پاشا قادری، پرانے پل کے کارپوریٹر شری S راج موہن، مجلس کے کئی ابتدائی صدور و معتمدین اور سینکڑوں سرگرم کارکن وہاں پر موجود تھے۔ ملکہ فرنیچر، معیاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر، برسہ برس سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش، معیاری اعلیٰ اور بہترین کوالٹی کا حسب استطاعت بھی جہیز کا مکمل فرنیچر سیٹ 20 سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجیے۔ ملکہ فرنیچر، روبرو والٹا ہوٹل مغل پورہ حیدرآباد۔ شہر حیدرآباد کے چندرائن گٹا علاقے میں واقع غازی ملت کالونی سے ایک دردناک خبر آئی ہے کہ وہاں کے ساکن ایک 27 سالہ نوجوان محمد اظہر نے کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر خودکشی کر لی ہے۔ پولیس نے اطلاع پا کر لاش کا پنجنامہ کیا اور عثمانیہ دواخانے منتقل کر دیا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ شہر حیدرآباد کے حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر شری پی مدھوکر سوامی نے انویسٹیگیشن آفیسر شری CH متیم راجو اور عدالت کی پولیس ٹیم کے ساتھ پتوں کا جوا کھیلنے کے جرم میں گرفتار کیے گئے شہر کے 6 لوگوں کے خلاف میں مضبوط ثبوت مہیا کرتے ہوئے انہیں نامپلی کرمنل کورٹ کے 2 میٹروپولیٹن اسپیشل مجسٹریٹ جناب الطاف حسین کے اجلاس پر پیش کر دیا، اور ثبوتوں کی روشنی میں آنریبل مجسٹریٹ نے ان 6 لوگوں کو 500 روپے کے چالانات کرتے ہوئے 2 دنوں کی جیل کا فیصلہ دیا اور انہیں جیل بھیجوا دیا۔ اب دیکھنا ہے کہ جیل کی سزا پانے کے بعد یہ لوگ جرم چھوڑتے ہیں یا مزید بگڑ جاتے ہیں۔ مرکزی صحت عامہ کی وزیر شریمتی انوپریا پٹیل نے آج شہر حیدرآباد کا دورہ کر کے ریڈ ہلز میں واقع شہر حیدرآباد کا شہرت یافتہ سرکاری دواخانہ نیلوفر میں دھرتی مودس ملک بینک، جس میں ماں کے دودھ کے قدرتی اجزاء بھی شامل ہیں،
इस सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब में मेहमान खुसूसी बनकर इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला श्री एन नरसिम्हा रेड्डी, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के एमएलए जनाब जाफर हुसैन मेराज, मल्लेपल्ली के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद इकबाल, एमएलसी प्रभाकर के साथ साथ हुकूमत और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई सरकर्दा शख्सियतें भी वहां पर मौजूद थी। शहर हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ पुलिस हुदूद में वाक़े एक गोदाम पर आज महकमे पुलिस की एसओटी की टीम ने एक इत्तला पर धावा करके बैन किए गए जर्दे के 50-50 किलो के करीब 250 थैलों को बरामद कर पहाड़ी शरीफ पुलिस के हवाले कर दिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर हैदराबाद की राजेंद्र नगर पुलिस के ओहदेदारों ने आज एक इत्तला पर नकली सोने के बहाने आवाम को लूटने वाली एक 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। ये लोग जिले संगारेड्डी के इलाके इसनापुर में अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ थे कि रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए और इकबाल जुर्म किया कि इससे पहले राजेंद्र नगर, मैलारदोपल्ली और चंद्रायनगुट्टा पुलिस हुदूद में इन्होंने नकली सोने के बहाने आवाम को लूटा था। उन्हें गिरफ्तार करके 40,000 नकद रकम, 2 तोले सोने के जेवरात, 22 तोले चांदी, एक होंडा एक्टिवा बाइक और 70,000 के कीमती कपड़े बरामद कर जब्त कर लिए गए। मजीद तहकीकात जारी हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावाज़ीन सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में वाक़े गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की प्रबंधक कमेटी के सदर श्री एस बलदेव सिंह बग्गा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सिख बरादरी के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की 548वीं पैदाइशी सालगिरह के खुशगवार मौके पर 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2017 के दौरान सारे ही शहर में बड़े धूमधाम से ये तकारीब मनाई जाएंगी। और आगे बताया कि इस सिलसिले में शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशुमार गुरुद्वारों में मजहबी और दूसरी रंगारंग तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी। IND टुडे इस खास मौके पर सिख बरादरी के लोगों को अपनी जानिब से पेशगी दिली मुबारकबाद पेश करता है। रियासत तेलंगाना में TRS हुकूमत की हर महाज पर नाकामी का दावा करते हुए शहर हैदराबाद की कांग्रेसी रहनुमा श्रीमती सबिता इंदिरा रेड्डी की सरकर्दगी में आज कांग्रेस के बेशुमार लीडर्स ने मुख्तलिफ जगहों से चलो असेंबली का जबरदस्त मार्च मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, लेकिन CM KCR की पुलिस ने जगह जगह से निकाले जाने वाले कांग्रेसियों के चलो असेंबली मार्च को वहीं के इलाके की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इलाके चंद्रायनगुट्टा से तो कांग्रेसी लीडर्स श्री वेंकटेश, श्री नरसिंह गौड़, श्री श्रीनिवास गौड़, श्री मोहन रेड्डी, श्री प्रमोद रेड्डी को चंद्रायनगुट्टे की पुलिस ने ही अपने इलाके में ही गिरफ्तार कर लिया। कुछ और जगहों से भी चलो असेंबली मार्च के कांग्रेसी लोगों को अपने अपने इलाकों में वहीं के पुलिस के गिरफ्तार करके उन्हें तहवील में ले लेने की शिकायतें मौसूल हुई हैं। और तो और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी को भी CM KCR की पुलिस ने उन्हीं की जगह से निकाले गए चलो असेंबली मार्च के जिमन में वहीं पर गिरफ्तार कर लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया। अब देखना है कि इस तरह की अपनी हरकतों से TRS हुकूमत अपनी नाकामियों को कब तक समाज से छुपा सकेगी। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड
चौमुहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शहर हैदराबाद के आगापुरा में वाक़े सुभानपुरा में आज एक नई बेकरी के इफ्तिताह के मौके पर बाहरी फुटपाथ पर जनरेटर नफ्स करते हुए अड़चन पैदा करने की कोशिश को आज मजलिस के मुकामी लोगों ने नाकाम बना दिया है। मुकामी लोगों की शिकायत पर इलाके के मजलिस के इब्तदाई सदर जनाब महबूब साहब और नायब सदर जनाब वाहिद साहब ने कई मजलिसी कारकुनों के हमरा वहां पहुंचकर बल्दिया की मदद से इस जनरेटर और चबूतरे को फुटपाथ से हटा दिया। इस सिलसिले में पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद डिवीजन से खबर आई है कि एक इतला पर कार्रवाई करते हुए इलाके की पुलिस के सब इंस्पेक्टर श्री श्रीकांत ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर से दिल्ली जा रही एक लारी को पिटगुराला गांव के पास रोककर उसकी तलाशी ली और मार्केट में कामयाब लाल संदल की लकड़ी के जखीरे को पकड़ लिया, जिसकी मार्केट में कीमत 50 लाख रुपए बताई गई है। लारी को ड्राइवर समेत हिरासत में ले लिया गया है और मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। आज ये इत्तला सब इंस्पेक्टर राजशेखर ने मीडिया को दी। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद डिवीजन से ही खबर है कि वहां के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल ने 2014 में तुलबा से आरटीएफ के नाम पर 829 रुपये लिए थे, जिनमें से 380 रुपये लौटाए जाते हैं। इनकी वापसी में देरी पर आज तुलबा ने जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया और प्रिंसिपल की गैर जिम्मेदाराना हरकत पर नाराजगी जताई। साथ ही हुकूमत तेलंगाना से रुपयों को वापस दिलाने का मुतालबा भी किया। वैसे अगर ये तुलबा बीजेपी के कौमी सदर के फर्जन के फर्जी स्कूल में पढ़ते होते तो कभी ऐसा एहतजाज नहीं करते। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। पीएम मोदी ने आज मसूरी एकेडमी में जेर तालीम IAS के बेशुमार तुलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि नीतियों को आवाम में कामयाबी के साथ जोड़ने के लिए वो आगे आ जाएं। बाद में उन्होंने हिमालय के दामन में किए जा रहे योगा में भी हिस्सा लिया। कर्नाटक के रियासती वजीर KG जॉर्ज के खिलाफ में CBI के FIR दर्ज करवाने के बाद आज वजीर मौसूफ ने अखलाकी बुनियादों पर अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इस मौके पर बीजेपी के लोगों ने अपना वही पुराना पत्ता खेलते हुए हुकूमत से इस्तीफे की मांग कर डाली और इस मौके पर CM सीतारमैया ने उन्हें याद दिलाया कि पहले अपनी पार्टी को देखो कि वो क्या गुल खिला रही है, बाद में इधर आओ कि हमारे पास कम से कम अखलाकी नुक्ते नजर तो बचा हुआ है। चलिए अब भारत में गौ रक्षा के नाम पर मारपीट करने वाले इतने आदी हो गए हैं कि बैरूनी सयाहों को भी नहीं बख्शा जा रहा है और भारत का नाम सारी दुनिया में रोशन किया जा रहा है। खबर है कि फतेहपुर सिकरी में स्विट्जरलैंड के 2 सयाहों को मारपीट करके उन्हें जख्मी कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि महकमे खारजा ने जख्मी सयाहों को हर मुमकिन मदद देने का तयक़ुन दिया है। हमेशा खबरों में लाए जाने वाले जम्मू कश्मीर के गवर्नर श्री NN वोहरा ने अवामी जानो माल के सिलसिले में आज एक कानून लागू किया है, जिसके तहत एहतजाज के दौरान नुकसान के सिलसिले में अब वहां के लोगों पर जुर्माने लगाए जाएंगे, साथ ही 5 सालों की जेल भी करने की बात बताई गई है। बहरहाल कश्मीर के सिलसिले में भारत के खवानीन ने आवाम को जबरदस्ती अपनी बात मनवाने का दर्स दे ही दिया है। अब आवाम समझदार है और बात की नजाकत को अच्छी तरह से समझ सकती है ना? दिल्ली में मुनक़िदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन इनिशिएटिव्स एंड रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में हिस्सा लेते हुए मरकजी वजीर श्री पीयूष गोयल ने बड़े ही जज्बाती अंदाज में बताया कि सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से माहौल में कार्बन पॉल्यूशन
کمزور ہو جائے گا۔ لہٰذا اس سلسلے میں حکومت نے شروعات کر دی ہے اور مزید کارروائیوں میں پیش رفت جاری و ساری ہو گئی ہے۔ بھارت کے سپریم کورٹ نے آج ملک میں کئی نوجوان ہلاکتوں کی ذمہ دار بلو ویل گیم کو خطرناک ثابت کرتے ہوئے دوردرشن اور بہت سارے نجی ٹی وی چینلز پر زور دیا کہ وہ اس سلسلے میں پروگرامز بنا کر عوام میں جاگرکتا لائیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک کمیٹی کو احکامات بھی دیے کہ 3 ہفتوں کے اندر ایسی رپورٹ بنائی جائے جس سے بچے اس گیم سے دور ہو جائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہ بم، نہ ہتھیار، نہ ہی پکڑے جانے کا ڈر، پھر بھی بلو ویل کے ذمہ داروں نے ساری دنیا میں اب تک ہزاروں بچوں اور نوجوانوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ کیا ایسے لوگوں کو دہشت گرد نہیں کہا جا سکتا؟ کیا ترقی یافتہ ممالک انہیں پکڑنے کے لیے آگے نہیں آ سکتے، یا پھر انہی کی کوئی یہ چال بازی ہے؟ اتنی مجبور دنیا کیوں ہو گئی ہے کہ ایسے لوگوں کو دہشت گرد بھی نہیں کہتی؟ واہ رے واہ۔